Dear students, in the earlier video, we studied electrophoresis. What is electrophoresis? Electrophoresis is the movement of colloidal particles under the influence of applied electric field. Now, today we will study electroosmosis. It is the movement of dispersion medium particle. बच्चे ध्यान से सुने. It is the movement of dispersion medium particle under the influence of applied electric field. लेकिन कब? When particles of dispersed phase are prevented from moving, तब जब हमने कोलाइडल पार्टिकल्स को मूव करने से प्रिवेंट किया हो. अगर आप नॉर्मल कंडीशन में बच्चे, अगर आपको याद है, मैं फिर से दिखा देता हूं आपको. अगर आप नॉर्मल कंडीशन में कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उस केस में कोलाइडल पार्टिकल ही मूव करेंगे, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था. लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट को स्टॉप कर दें और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, इन दैट केस व्हाट हैपेंस? डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग एंड दिस मूवमेंट ऑफ dispersion medium particles under the influence of applied electric field, when dispersed phase particles are prevented from moving, is called electroosmosis. इसको हम बोलते हैं बच्चे क्या? electroosmosis, है ना? तो it is different from but electrophoresis. याद रखें बच्चे. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को कैसे स्टॉप करना. हाउ टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स. कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट को स्टॉप कैसे करना? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन. एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कोलाइडल पार्टिकल्स पास नहीं कर सकते. ठीक है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते, उसमें से डिस्पर्शन मीडियम को पास कर जाता, बट कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट. तो हम क्या करेंगे? हम जो ऑपरेटर सेटअप लगाएंगे, जैसे ये लगाया हुआ बच्चे, इसमें हम ऑपरेटर्स को 3 कंपार्टमेंट्स में बांट देंगे. 3 कंपार्टमेंट्स with the help of semi permeable membrane. In the middle compartment we take colloidal solution. हमने क्या ले लिया बच्चे? colloidal solution. In the outer compartments we take the क्या बच्चे? dispersion medium and insert the electrodes. क्या insert कर दी बच्चे? electrodes. एक साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दी, एक साइड नेगेटिव. ठीक है बच्चे. ये हमने साइड ट्यूब्स रखी हैं टू ऐड डिस्पर्शन मीडियम, और ये इनलेट रखी है टू ऐड कोलाइडल सॉल्यूशन. When we pass the current, जब हमने करंट पास की, what happened? What we saw? We saw dispersion medium particles start moving. Dispersion medium particles move करना शुरू कर गए, and the movement was opposite to that of colloidal particle. यहाँ तो colloidal particle move कर ही नहीं सकता. इतना याद रखें कि dispersion medium particle carry charge opposite to colloidal particle. अगर आपके colloidal particle के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे arsenious sulfide salt, arsenious sulfide salt carry negative charge. इतना आपको पता है, अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था. they carry negative charge. तो अगर आप arsenious sulfide salt को लेते हैं यहाँ पे, understood है जो dispersion medium है that is carrying positive charge and it will be seen moving towards cathode. इस साइड जो साइड ट्यूब लगाई, इस साइड लेवल बढ़ेगा, dispersion medium लेवल बढ़ेगा. साफ है कि जो dispersion medium है वो इधर को मूव किया, नेगेटिव साइड मूव किया, मीन इट इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज. ठीक है बच्चे. सो दिस इज electroosmosis. This phenomena is called as what? Electroosmosis. In the electroosmosis, the apparatus is designed in such a way that colloidal particles are not allowed to move. वो मैंने बता दिया आपको कैसे करना. आपने colloidal particles की मूवमेंट को स्टॉप कैसे करना? by placing it between two semi-permeable membranes through which dispersion medium can pass, but colloidal particles cannot pass. Then electric field is applied. The particles of dispersion medium start moving towards oppositely charged electrode. Charge carried by dispersion medium is opposite to charge carried by colloidal particle. ठीक है. If dispersion medium carry negative charge, जैसे arsenious sulfide मैंने एग्जांपल दी, then colloidal part dispersion medium carry negative charge. ये गोल्ड साल हो गया बच्चे. डिस्पर्शन मीडियम कैरी हो रहा है नेगेटिव चार्ज. तो डिस्पर्शन मीडियम नेगेटिव चार्ज कब कैरी करेगा? तब आपका सॉल पॉजिटिव होगा. जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल. फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज. इट इज पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल.
इट इज पॉजिटिव चार्ज। इसके केस में डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज। जो मैंने एग्जांपल दी थी अर्सेनियम सल्फाइड की, अर्सेनियम सल्फाइड नेगेटिव चार्ज है, तो डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव, है ना। तो जहां पे लिखा है उसके हिसाब से वो बोल रहा है कि इफ डिस्पर्शन मीडियम कैरी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कब कैरी करेगा, कोलाइडल पार्टिकल कैरी पॉजिटिव चार्ज। याद रखें बच्चे, डिस्पर्शन मीडियम कैरी चार्ज opposite to colloidal particle. This is very important. So if a dispersion medium particles carry negative charge, they will move towards the anode. अगर dispersion medium के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चे, negative, they will move towards the anode. If they carry positive, they will move towards the cathode. So colloidal particles are prevented from moving with the help of semi-permeable membrane. Colloidal particles को बच्चे हमने prevent करना movement से कैसे, with the help of semi-permeable membrane. This was all about electroosmosis. मैं एक बार फिर से बच्चे बोल दूं, what is electroosmosis? Electroosmosis is the movement of dispersion medium particles under the influence of applied electric field when dispersed phase particles are prevented from moving. अगर आप डेफिनेशन को यहाँ क्लोज कर देते हैं, इतना लिख देते हैं, फिर गलत है। आप लिखते हैं मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ बंद कर देते हैं अपनी डेफिनेशन को, इट इज रॉन्ग। डिस्पर्शन मीडियम तभी मूव करता हुआ दिखेगा आपको व्हेन कोलाइडल पार्टिकल्स दैट इज डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम मूव। ठीक है बच्चे, नाउ लेट अस स्टडी आवर नेक्स्ट कांसेप्ट, कोआगुलेशन और फ्लोअकुलेशन। हमारा नया कांसेप्ट है बच्चे, नेक्स्ट कांसेप्ट है वो है कोआगुलेशन और फ्लोअकुलेशन। हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बच्चे, ये भी उसी में आता। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। Phenomena of aggregation of colloidal particles into insoluble precipitates. Colloidal particles carry charge, आपने पढ़ा बच्चे, colloidal particles के ऊपर चार्ज होता है, खासकर जो लायोफोबिक हैं, कैरी चार्ज, ठीक है, they don't come close। किसी तरीके से हम इनको नजदीक ले आए, इनके चार्ज को रिमूव कर दें, what will happen? They start aggregating, ये इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। जैसे इनका चार्ज खत्म होगा, दे स्टार्ट एग्रीगेटिंग एंड फॉर्म क्या बच्चे, प्रेसिपिटेट्स साइज इज बिगर देन व्हाट कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है बच्चे, प्रेसिपिटेट्स सेटल डाउन एट द बॉटम। तो फिनोमेना ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इनटू इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स और इनसॉल्युबल लिखा नहीं भी हो तब भी हम ऐसे जब वर्ड प्रेसिपिटेट यूज कर दिया, इट मीन दे आर इनसॉल्युबल। ठीक है, so phenomena of aggregation of colloidal particle into insoluble precipitates by addition of excess of suitable electrolyte is called coagulation. If precipitates float, then it is called flowculation. अगर precipitate नीचे नहीं बैठे, float करें सरफेस पे, तो हम कहते हैं इसको क्या बच्चे, flowculation। दो वर्ड यहाँ यूज किए गए हैं, one is flowculation, second is coagulation। If they settle down, it is coagulation. If they float, it is called flowculation। एक चीज नोट किया आपने, एक्सेस ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक बेसिक कांसेप्ट बताना चाहता हूं। जब हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल बनाया था तो क्या किया था, हाउ इट वाज प्रिपेयर्ड। हमने क्या किया था, फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट लिए थे, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट वी टुक, ठीक है, in the dispersion medium, and to this we added small amount of electrolyte, ferric chloride। थोड़ा सा हमने इसमें क्या डाला बच्चे, फेरिक क्लोराइड। व्हाट हैपेंड, फेरिक हाइड्रोक्साइड के सरफेस पे कौन एब्जॉर्ब हो गया बच्चे, कौन एब्जॉर्ब हो गया, Fe3 positive ions। Fe3 positive ions got absorbed on the surface of what, ferric hydroxide, and precipitates start dispersing and we got colloidal solution। जब हमने थोड़ी क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट डाला, it stabilized, याद रखिएगा, in small quantity electrolyte stabilize, but when we add the same electrolyte in excess, what happen, there is coagulation। this is very important। तो यहाँ पे लिखा है बच्चे, इस चीज को अपने दिमाग में रखें, by addition of excess of suitable electrolyte, addition of excess of, coagulation is generally brought about by addition of electrolytes। In fact, electrolyte provides suitable ions, that is ions carrying charge
opposite to colloidal particle, which neutralize the charge of colloidal particle. The neutral particles then start accumulating to form particles of large size, which settle down. ठीक है, ये कहता है कि जब हमने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट ने क्या किया, इट गेव आयंस, उसमें तो दोनों किस्म के आयन है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ठीक है, लेकिन हम उसी आयन की बात करेंगे जिसने हमारे कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज किया। हम कहेंगे गेव आयन, suitable ion which carry charge opposite to colloidal particle. These ions neutralize the charge of colloidal particle. इन ions ने colloidal particles के charge को बच्चे neutralize कर दिया, and ultimately what happened? Colloidal particles start accumulating, and then there is coagulation. For example, if we add barium chloride to arsenium sulfide salt, arsenium sulfide salt carry what type of charge बच्चे? arsenium sulfide salt carry, आपने पढ़ा, नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। इसमें हमने डाला बेरियम क्लोराइड। अब बताओ इसमें सूटेबल आयन कौन है? विच इज द सूटेबल आयन? अगर आपका दिमाग काम करता है तो थोड़ा सोचो, मैं पास करता हूं। आपने सोचा होगा, देखें आपकी जो सोच है वो सही है या गलत है। इसमें सूटेबल आयन है, मैंने कहा था आयन विच कैरी चार्ज अपोजिट टू कोलाइडल पार्टिकल। मेरे कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या बच्चे? नेगेटिव। तो सूटेबल आयन इसमें कौन है बच्चे? बेरियम 2 पॉजिटिव। दिस इज द सूटेबल आयन। ठीक है बच्चे, सो हियर बेरियम क्लोराइड provides barium 2 positive ions. Suitable ion in this case is barium 2 positive, which neutralize negatively charged arsenium sulfide particles and thus bring about coagulation. The ion carrying charge opposite to colloidal particle is called flocculating ion. The ion carrying charge opposite to colloidal particle. जिस आयन ने coagulation करी, जिस आयन ने क्या की बच्चे? coagulation, उस आयन को हम कहते हैं फ्लोकुलेटिंग आयन। दैट आयन इज कॉल्ड एज फ्लोकुलेटिंग आयन। तो ये था बच्चे कंसेप्ट किसका? कोगुलेशन का। हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो आयन कैरिंग चार्ज अपोजिट टू कोलाइडल पार्टिकल है, वो कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा। एक्सेस का मतलब क्या है ये भी समझ लें। अगर आपने स्मॉल क्वांटिटी में ऐड किया होगा इलेक्ट्रोलाइट, तो वो स्टेबलाइज करेगा, जो उसका अपोजिटली चार्ज आयन है वो बिखरा होगा। कंसंट्रेशन बड़ी कम है, हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाला। अगर ज्यादा डालेंगे तो जो उसके अपोजिटली चार्ज आयन है वो नजदीक आएंगे। Ions come close. Now we'll study our next concept, Hardy and Schulz law. The next concept is Hardy and Schulz law. ठीक है बच्चे, तो हार्डी एंड शूज लॉ, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? कोगुलेशन। कोगुलेशन से ही रिलेटेड है। इसको हम स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग, कौन से हेडिंग के अंडर स्टडी करते हैं बच्चे? वी स्टडी इट अंडर द हेडिंग कोगुलेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोगुलेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरूरी नहीं आपको सीधा कोगुलेशन पे ही नोट आए, आपको हार्डी एंड शूज लॉ भी पूछ सकते हैं एग्जाम, ठीक है? दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन कोगुलेशन। Hardy and Schulz law. This law states that quantity of electrolyte required to coagulate a definite amount of salt depend upon valency of ion of electrolyte having a charge opposite to that of colloidal particle. ये लॉ कहता है कि जिस भी colloidal पार्टिकल को आपने कोगुलेट करना है इलेक्ट्रोलाइट की मदद से, जैसे अर्सेनियम सल्फाइड सॉल्ट बच्चे, अर्सेनियम सल्फाइड, मैंने ऑक्साइड लिख दिया, सॉरी, अर्सेनियम सल्फाइड सॉल्ट कैरी नेगेटिव चार्ज। कितना पता है बच्चे आपको? एग्जांपल से समझाता हूं आपको व्हाट ही इज सेइंग। मैंने ऑक्साइड डाला, अर्सेनियम सल्फाइड सॉल्ट, इट कैरी नेगेटिव चार्ज। अर्सेनियम सल्फाइड सॉल्ट, इट कैरी नेगेटिव चार्ज। मैं इसको कोगुलेट करना चाहता हूं। मेरे पास बच्चे सोडियम क्लोराइड है, मेरे पास बेरियम क्लोराइड है, मेरे पास एक और इलेक्ट्रोलाइट है बच्चे, बेरियम क्लोराइड है, एक और है, मुझे 3 इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड किए गए, एल्युमिनियम क्लोराइड भी, 3 इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड किए गए। अब बताएं मुझे इसमें कम क्वांटिटी किसकी लगेगी? कहता है उसकी लगेगी जिसमें
आयन की बैलेंसी ज्यादा होगी, द आयन विच कैरी चार्ज अपोजिट टू कोलाइडल पार्टिकल। यानी कि इस केस में एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन विल बी मोर इफेक्टिव टू न्यूट्रलाइज अर्सेनियम सल्फाइड सॉल्ट। याद रखें इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चे, नेगेटिव। अर्सेनियम सल्फाइड सॉल्ट कैरी नेगेटिव चार्ज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको न्यूट्रलाइज करना पॉजिटिव आयन। Aluminium 3 positive ion will be more effective than what? Barium 2 positive ion. Barium 2 positive will be more effective than what? Na positive. Because it has 3 unit of positive charge. It will be more effective. So this is what is being stated by Hardy and Schultz law. फिर से इसको यहाँ से बच्चे रीड आउट कर देता हूँ मैं आपके लिए, so that you better understand it. So Hardy and Schultz law observed that quantity of electrolyte required to coagulate definite amount of salt depend upon balance of ion of electrolyte having charge opposite to that of colloidal particle. हमने उस आयन को देखना जिसकी बैलेंसी अपोजिट टू कोलाइडल पार्टिकल है, यानी कि नेगेटिव सॉल्ट को अगर हमने न्यूट्रलाइज करना है तो हमने इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयन को देखना, उसकी बैलेंसी क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, more effective is the electrolyte and lesser its amount will be required. उतना ज्यादा वो इफेक्टिव होगा, उतनी ही कम क्वांटिटी उसकी चाहिए होगी, है ना। तो this observation of Hardy and Schultz is known as Hardy and Schultz law, which states that, ये इसकी बच्चे फाइनल डेफिनेशन है, greater the valency of active ion। क्वेश्चन है what is the active ion? Active ion फिर से कहूंगा बच्चे मैं, active ion the ion which carry charge opposite to that of colloidal particle. Ion of electrolyte which carry charge opposite to that of colloidal particle. Greater the valency of active ion of electrolyte, greater will be its coagulation power. Simple. जितना ज्यादा बच्चे बैलेंसी होगा एक्टिव आयन का, मैंने पहले बोल दिया, who is active ion? The ion which carry charge opposite to that of colloidal particle. तो जितना ज्यादा एक्टिव आयन का बैलेंसी होगा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी बच्चे, कोआगुलेशन पावर। जैसे बच्चे जो एग्जांपल मैंने डिस्कस की, यहाँ भी डिस्कस की हुई है कि जैसे नेगेटिवली चार्ज्ड अर्सेनियम सल्फाइड सॉल्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन इज मोर इफेक्टिव देन व्हाट, बेरियम 2 पॉजिटिव आयन। बेरियम 2 पॉजिटिव इज मोर इफेक्टिव देन व्हाट, बेरियम 2 पॉजिटिव इज मोर इफेक्टिव देन व्हाट बच्चे, सोडियम पॉजिटिव। इसी तरह से अगर हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट को बच्चे न्यूट्रलाइज करना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके लिए नेगेटिव आयन चाहिए हमें। फॉस्फेट आयन इज मोर इफेक्टिव देन सल्फेट आयन एंड सल्फेट इज मोर इफेक्टिव देन क्लोराइड। इट हैज नेगेटिव 3 वैलेंस, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है नेगेटिव में। इट इज मोर इफेक्टिव देन व्हाट, सल्फेट नेगेटिव आयन, 2 नेगेटिव आयन। सल्फेट 2 नेगेटिव इज मोर इफेक्टिव देन क्लोरीन 1 नेगेटिव। ये ना बच्चे, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, नेगेटिव आयन। तो दोज आयंस विल बी मोर इफेक्टिव व्हिच पोजेस हायर वैलेंस। तो दिस इज हार्डी एंड शुल्ट्ज लॉ। अब बच्चे एक और यहाँ पे कांसेप्ट दिया, कोआगुलेशन वैल्यू। व्हाट इज मेंट बाय द कोआगुलेशन वैल्यू? जो कोआगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्या बच्चे, कोआगुलेशन वैल्यू। मतलब कितना आपका इफेक्टिव है क्या, इलेक्ट्रोलाइट, how much your electrolyte is effective. So that is given in terms of what, coagulation value. So let us have a definition of coagulation value. The minimum amount of electrolyte, in millimoles that must be added to 1 liter of colloidal solution so as to cause its complete coagulation is called coagulation value. Minimum amount of electrolyte in millimoles that must be added to 1 liter of colloidal solution. 1 लीटर के कोलाइडल सॉल्यूशन को कोआगुलेट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो लगेगा इन मिलीमोल्स, वो उसकी क्या है बच्चे, कोआगुलेशन वैल्यू। स्मॉलर द कोआगुलेशन वैल्यू, कम लगा, मीन हायर द कोआगुलेशन पावर, उसकी कोआगुलेशन पावर ज्यादा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं बच्चे, जैसे ये दिए हुए एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, 3 ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड।
हमने कोगुलेट करना है किसको बच्चे? हमने कोगुलेट करना है नेगेटिव सॉल्ट। आपके दिमाग में क्या आता है? नेगेटिव सॉल्ट जैसे हमने कोगुलेट करना बच्चे अर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट, अर्सेनियस सल्फाइड, इट इज नेगेटिव चार्ज। इसको हमने कोगुलेट करना, तो मुझे बताएं किसका कम अमाउंट लगेगा? उसका कम अमाउंट लगेगा जिसका आयन, एक्टिव आयन ज्यादा बैलेंसी कैरी कर रहा है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में जो एक्टिव आयन है कौन है? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चाहिए। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इज मोर एक्टिव देन बेरियम 2 पॉजिटिव। बेरियम 2 पॉजिटिव इज मोर एक्टिव देन सोडियम पॉजिटिव फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अर्सेनियस सल्फाइड। साफ है बच्चे कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की कोगुलेशन पावर ज्यादा हो, मतलब इसका कम अमाउंट लगेगा। आप खुद देख लें बच्चे, एल्यूमिनियम क्लोराइड कितना डालना पड़ा हमें? 0.093 मिलीमोल, जबकि सोडियम क्लोराइड कितना डालना पड़ा? 52, बहुत ज्यादा, 52 मिलीमोल्स पर लीटर। 1 लीटर में 52 मोल्स मिलीमोल्स डालने पड़े सोडियम क्लोराइड के। और इन केस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड कितना डालना पड़ा बच्चे? 0.093 मिलीमोल। इट मीन एल्यूमिनियम क्लोराइड की कोगुलेशन पावर मच मोर है किससे? अर्सेनियस सल्फाइड से। सो स्मॉलर द कोगुलेशन वैल्यू, ये जो मिलीमोल्स में दी है बच्चे, ये क्या है? कोगुलेशन वैल्यू। स्मॉलर द कोगुलेशन वैल्यू, हायर द कोगुलेशन पावर। इसी तरह से बच्चे फॉर कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट, फेरिक हाइड्रोक्साइड, पॉजिटिव को कौन कोगुलेट करेगा बच्चे? विच आयन? नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे बच्चे नेगेटिव आयंस दिए है। विच वन विल बी मोस्ट इफेक्टिव? दिस आयन, हेक्सासाइनोफेरेट, फेरिक 3 नेगेटिव। इसमें आयरन, ये जो आयन है ना, कॉम्प्लेक्स आयन है बच्चे, FeCN6, Fe इसमें 3 पॉजिटिव है, साइनाइड इसमें 6 है, तो 6 नेगेटिव। तो नेट चार्ज इस आयन के ऊपर कितना है बच्चे? 3 नेगेटिव। पोटाशियम फेरी साइनाइड, ये पोटाशियम फेरी साइनाइड इलेक्ट्रोलाइट का नाम है, इससे जी आयन मिला है हमें, है ना? सो दिस आयन कैरी नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव। तो दिस आयन विल बी मोर इफेक्टिव देन SO4 2 negative ion, which in turn will be more effective than chloride and bromide negative ions to coagulate which salt? Ferric hydroxide salt। इसलिए coagulation value सबसे कम किसकी होगी? पोटाशियम फेरी साइनाइड, इसकी coagulation value बच्चे सबसे कम है, मीन इसकी coagulation power सबसे ज्यादा है। ठीक है बच्चे? तो फॉर coagulation of negatively charged salt, coagulation power follows out। नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट को कोगुलेट करने के लिए कोगुलेशन पावर का ऑर्डर ये होगा। एल्यूमिनियम की कोगुलेशन पावर बेरियम से ज्यादा होगी, बेरियम आयन से, और बेरियम आयन की बच्चे सोडियम पॉजिटिव आयन। कोगुलेशन करने के एक तरीका बच्चे, कोगुलेशन का हमने बताया, क्या तरीका बताया? उसी में हमने ये कंसेप्ट भी पढ़ लिया हार्डी एंड शूज लॉ का। एक तरीका हमने अंडरस्टैंड किया, अगर आपको याद है, वो क्या था बच्चे? बाय एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और भी तरीके हैं, अगर आप चाहें तो आप उनको भी अच्छे स्टडी कर सकते हैं। देयर आर अदर वेज आल्सो फॉर कोगुलेटिंग द कोलाइडल सॉल्यूशंस। क्या है वो? बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आपने पढ़ा, फिर से मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से भी आप कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस व्हाट इट डू, इट न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। जैसे ही कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, what will happen? They get coagulated. So prolonged electrophoresis causes coagulation of colloidal particles because neutralized colloidal particles unite, grow in size and settle down. जो न्यूट्रल colloidal particle है वो इकट्ठे होते रहते हैं, अल्टीमेटली उनका साइज इतना बढ़ जाता है कि नीचे बैठ जाते हैं, and we have coagulation by mutual precipitation। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब है आपके पास दो कोलाइडल सॉल्यूशन है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड है, एक पॉजिटिव है, दोनों को मिक्स कर दो, सिंपल, they will neutralize each other by mutual precipitation। When two oppositely charged salts are mixed in approximately equal proportion, the charge on one salt is neutralized by charge on the other salt, with the result both salts get coagulated। For example, positively charged ferric hydroxide salt can be neutralized by adding negatively charged arsenious sulfide salt, and both these salts get coagulated।
दिस इज म्यूचुअल कोagulation बाय प्रोलॉन्ग डायलिसिस में हम क्या करते हैं बच्चे, स्टेबिलिटी ऑफ सॉल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सॉल की जो स्टेबिलिटी मैंने शुरुआत में बताया कि अगर हम थोड़ी मात्रा में, थोड़ी क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट डालें इट स्टेबलाइज, एक्सेस में डालें इट कोagulate। तो डायलिसिस में हम वो थोड़ी क्वांटिटी वाला इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर निकाल लेते हैं ना। सो ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस द इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली रिमूव्ड एंड द सॉल बिकम्स अनस्टेबल एंड गेट कोagulated। डायलिसिस का कांसेप्ट हमने बच्चे अलग से स्टडी करना, हाउ वी रिमूव द स्मॉल quantity of that electrolyte. By dialysis we remove the small quantity of electrolyte which is required for stabilization of what salt. तो जब हमने उसको भी रिमूव कर दिया तो उसकी स्टेबलाइजेशन के लिए चाहिए था, what will happen? Little particles will get precipitated. So by dialysis, by heating or cooling. In some cases, heating of salt or cooling, excessive cooling can also result in coagulation. जैसे बच्चे बटर को आप हीट करो उसकी कोagulation हो जाती है, मिल्क को आप एक्सेसिवली ठंडा करो उसकी क्या हो जाती है, कोagulation। थैंक यू, होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।